Hello students. So in the previous lecture we discussed about the two interaction or population interaction, only one population interaction, the predation or prey-predation relationship. Okay, now today we start the another interaction of different animals or different plants or animal plants or different two species, that is competition, and it is directly related with Darwin's rule. When Darwin told that when any species who can tolerate all the abiotic factor, who can easily survive in any habitat, and that particular habitat, so they create more species, or they produce a more species of that species, or they create a more individual of that species, so they increase the population. Now when they increase the population but the sources are limited, the food sources, the habitat sources, the reproductive partners, those are the specific or limited. Now what happened, when the sources are limited and the population is increased continuously, then what happened? So competition between that two species. So sometimes the competition occurs between the similar species because of similar sources, and sometimes because of the similar sources, the two different species are interact with each other, or rather compete to each other, and that is known as interspecies competition or intraspecies competition. Interspecies competition means that two different species are compete with each other for a similar sources, and intra means within the species, जो भी competition हो रहा है within the species, that is known as intraspecies competition. So that this competition is between the same species or with the two different species. So these are the different competition. Okay, now competition is directly related with sources. If there is unlimited sources, so there is a less competition or no competition there. But if the sources are limited, then what happened? So when the sources are limited, then obviously competition hota hai. And you all know that during the competition, both the species lose their A species A and species B, both are not beneficial with this interaction, यानी दोनों का नुकसान होता है. Okay, now during this interaction कोई एक को बेनिफिट होता है ऐसा नहीं होता, दोनों को बेनिफिट नहीं होता. सो अब ये इंटरेक्शन में क्या होगा कि सोर्सेस है वो एनिमल जो भी ले रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल फूड, वो डिपेंड करता है वो एनिमल कितना फिट है इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट. वो जहाँ पे रहते हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उस हैबिटेट के अंदर वो फूड कितना ले सकते हैं, या फिर वो कितने एबल है फॉर फूड कैप्चरिंग, दैट क्रिएट्स देयर डोमिनेंसी. कि वो अगर ज़्यादा फिट है, सो दे बिकम डोमिनेंट इनटू दैट environment or into that habitat, and they can easily get their food, and the another species, so the second species which can't able to survive because the deficiency of food, because the limited sources, so they will destroy. So वो जो species होगी वो destroy हो जाएगी, वो extinct हो जाएगी, या फिर उसको damage होगा. ओके, सो कोई एक species होगी वो dominant हो सकती है, और second जो है वो मर भी सकती है, या एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, या डिस्ट्रॉय हो सकती है, वॉट एवर यू कैन से. सो देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज द फ्लेमिंगो, खास करके इन टू द साउथ अमेरिका. ओके, सो इन द साउथ अमेरिका there is a lake, or rather a wetland is there, so there is a few flamingos are there. So flamingo maybe you आपने देखा ही होगा फ्लेमिंगो, बिकॉज आर स्टेट बर्ड, फ्लेमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. ओके, सो फ्लेमिंगो विच यूज द प्लैंक्टॉन्स एज अ फूड. ओके, वो प्लैंक्टॉन्स को खाते हैं, एंड सेम फूड सोर्सेज आर ऑल्सो टेकन बाय फिश. ओके, सो
फूड, ये सेम फूड सोर्स हैं फिश के लिए भी। सो फ्लेमिंगो एंड फिश दोनों एक ही फूड खाते हैं, प्लैंकटॉन्स। ओके, सो नाउ जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी दे कैन गेट मोर प्लैंकटॉन्स। ओके, अगर जिसकी स्पीड कम है तो वो भूखा रहेगा, या तो उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, या फिर अगर माइग्रेट कर सकता है, फॉर एन एग्जांपल फ्लेमिंगो माइग्रेट कर सकता है, फिश नहीं कर सकती। और अगर फ्लेमिंगो की स्पीड ज़्यादा है तो फिश को डैमेज होगा, उसकी स्पीसीज को डैमेज होगा, फ्लेमिंगो को भी डैमेज हो सकता है और वो भी माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेम सोर्सेस। दिस अनदर एग्जाम्पल कि अगर सोर्सेस आर नॉट लिमिटेड, या फिर सोर्सेस आर लिमिटेड, देन व्हाट हैपेंड। सोर्सेस लिमिटेड, ये भी बताया कि सोर्सेस आर लिमिटेड। सो अगर अनलिमिटेड है तो कोई चांसेस नहीं है, बट सोर्सेस आर लिमिटेड, देन व्हाट हैपेंड। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैलापागोस। ओके, गैलापागोस इज अ वेरी डाइवर्स आइलैंड बिकॉज डार्विन ने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट या फिर यू कैन से कि ऑब्जर्वेशन काफ़ी किए थे। सो गैलापागोस पे उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। गैलापागोस पे एक ग्रास होती है विच इज़ वेरी सॉफ्ट ग्रास। ओके, दैट एबिंगटन turtles use that grasses for food. Okay, and you know कि अगर टर्टल है या फिर टॉर्टोइज है तो दे आर स्लो। ओके, उनकी स्पीड नहीं होगी ज़्यादा। ओके, नाउ व्हेन दे ईट द ग्रास, ओके, ये कॉमन सोर्सेज है फूड का गॉड के लिए भी। सो गॉड हैव अ सेम सिमिलर फूड प्रोडक्ट। सो ऑब्वियसली इन दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली सर गॉड की। सो वी लूज द एबिंगटन स्पीसीज। सो गैलापागोस से एबिंगटन स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, बिकॉज द फूड सोर्सेस आर सिमिलर। फूड सोर्सेस हैं वो सिमिलर है, दैट्स वाई गॉड है वो पूरा खाना खा गई या फिर वो सभी ग्रास खा गई। सो एबिंगटन है वो भूखे मर गए because of less speed. So you can say कि God are more fit into that environment. So ये extinct हो सकती है, इतना competition increase हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये competition इतना increase हो गया कि एक species पूरी की पूरी extinct हो गई। So एक पूरी species destroy हो सकती है, गाउस ने भी बोला है। So गाउस के अंदर जो same experiment हुआ, गाउस ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, सो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल गाउस एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट इकोलॉजिस्ट कि जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसमें से एक का नाम कॉनेल जो है वो थे कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन सब पर, और कॉनेल ने खास करके स्कॉटलैंड में एक्सपेरिमेंट किया था एक। ये फूड के एग्जाम्पल है, फ्लेमिंगो, देन एबिंगटन, फ्लेमिंगो, और ये सभी फूड के एग्जाम्पल है। सो कॉनेल ने एक एग्जाम्पल दिया हैबिटाट का, रहने के लिए कितना कंपटीशन है वो बताने के लिए। सो इन दी सी वाटर, रादर सी शोर पर जो भी रॉक्स होते हैं वहाँ पे बार्नेकल्स एक आर्थ्रोपोडन स्पीसीज है, वो बार्नेकल्स सर्वाइव करते हैं रॉक के साथ अटैच होके। वो दे अटैच विद एनी सबस्ट्रेट एंड दे आर सर्वाइव on that rock only. Okay, so वो मूव नहीं करते। So there are few species of barnacles, जिसमें से एक है जो बड़ी species है which is Balanus. So Balanus is the large barnacles and they are attached with the rocky surface or rocky areas. Okay, now what about the small barnacles? अगर large barnacles होंगे तो वो small barnacles को rock पर attach नहीं होने देते। तो ये एक observation उन्होंने elegant field experiment किया था in the स्कॉटलैंड के अंदर कि बार्नेकल्स जो भी होते हैं वो दो टाइप के बार्नेकल्स के बीच में कंपटीशन था। एक थे बड़े बार्नेकल्स जिसको बैलेनस को कहते हैं, और एक थे छोटे बार्नेकल्स जिसको कैथेलेमस कहते हैं। कोई लोग इसको कैथेलेमस कहते हैं, कोई चैथेलेमस बोलता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउंसिएशन। जनरली आई प्रोनाउंस दैट कैथेलेमस। ओके, सो कैथेलेमसेस आर स्मॉल बार्नेकल्स एंड बैलेनसेस आर लार्ज बार्नेकल्स। ओके, सो स्मॉल बार्नेकल्स ऑब्वियसली कि वो स्मॉल बार्नेकल्स हैं तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, और जो लार्ज बार्नेकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। तो
दे कैन सर्वाइव इजीली। सो यहाँ पे कंपटीशन होता है दोनों के बीच में, ओके और ये बालानस है वो कैथेलेमस को रिमूव कर सकता है या कर देता है रादर। देन गॉस का एक्सपेरिमेंट था, गॉस का एक रूल है। गॉस ने क्या बताया, गॉस ने बताया प्रिंसिपल कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन होता है किसका, कि यानी दो स्पीसीज है वो सेम सिमिलर सोर्सेस पर डिपेंड करती है, तो बोथ द स्पीसीज कांट को एग्जिस्ट, ओके दोनों जो है वो को एग्जिस्ट, दे कांट को एग्जिस्ट विद अ सिमिलर टाइम, ओके विद द सिमिलर सोर्सेस, ओके वेट हाँ ओके। सो बोथ द स्पेसिस है, जो दोनों स्पेसिस वो एक साथ सरवाइव नहीं कर सकती बिकॉज बोथ स्पीसीज है सेम सोर्सेस, ओके सो दोनों के सोर्सेस सेम है, दैट्स व्हाई दे कांट सरवाइव विद द सेम टाइम ड्यूरेशन ऑन द सेम सोर्सेस, ओके और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाई इट्स ही सेड दैट कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिकॉज कोई एक स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या कोई एक स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ओके और so many examples are there just like this Galapagos कि जो गॉट और एबिंगटन था उसमें से एबिंगटन थे वो डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ सिमिलर सोर्सेस। सो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसके सोर्सेस सिमिलर है, जिसके सोर्सेस सिमिलर है उस सिमिलर सोर्सेस में से जो कोई एक जो फिट है उनमें से कोई एक जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो कॉम्पीट करती है एक दूसरे को, जिसमें से जिसकी एबिलिटी नहीं है दैट दे विल एक्सटिंक्ट, ओके बट इसका कोई उपाय सर, हाँ इसका उपाय है, यू कैन से, और इसका उपाय एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैक आर्थर ने बताया था कि आर्थर ने नहीं बताया था, गॉस के एक्सपेरिमेंट में या गॉस के प्रिंसिपल में ही था कि इसका रूल क्या हो सकता है कि अगर किसी को एक्सक्लूजन नहीं करना या फिर कोई एक डिस्ट्रॉय ना हो तो क्या करना चाहिए। सो कि अगर सोर्सेस सेम है तो एनिमल्स कैन चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। अगर कोई डायूरल है तो कोई नॉक्टर्नल हो जाएगा, यानी कोई दिन में शिकार करता है, अगर सोर्सेस आर सेम तो अगर एक जो एनिमल है वो दिन में शिकार करे और दूसरा एनिमल है वो रात में शिकार करे तो वो ये हो सकता है। अगर एक एनिमल है वो उसका टाइमिंग चेंज कर दे और दूसरा एनिमल खुद का टाइमिंग चेंज कर दे तो दे अकॉर्डिंगली मीन्स दे म्यूचुअली दे कैन अंडरस्टैंड देयर बिकॉज द सोर्सेस आर सिमिलर। सो अगर वो म्यूचुअली नहीं अंडरस्टैंड करते तो नेचुरली ऐसा कुछ हो जाता है कि उनकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाती है, तो एक ही प्लेस पे एक ही फूड सोर्सेस पे मोर देन टू स्पीसीज कैन सर्वाइव विथ अ सिमिलर टाइम और सेम टाइम, ओके तो एक ही टाइम पे दो स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है। हाउ? बिकॉज दे चेंज देयर बिहेवियर, दे चेंज देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, food sources change, or you can say it, this is the that is also known as distribution of sources or division of sources, that is known as division of sources। you can say that कि आप division sources का division अलग कर दीजिए या sources का division कर दीजिए तो you can say कि सर हाँ हो सकता है एक से ज़्यादा स्पीसीज है वो सर्वाइव कर सकती है, और उसका एक्सपेरिमेंट दिखाया मैक आर्थर ने। एक ही प्लांट पे 5 स्पीसीज ऑफ वेबलर, वेबलर इज अ बर्ड, सो एक ही टाइम पे एक ही प्लांट पे यानी हैबिटेट भी सेम, स्पीसीज भी 5, एक ही जीनस की 5 स्पीसीज जिसका फूड भी सिमिलर है, ऐसी 5 वेबलर स्पीसीज एक साथ सर्वाइव करती थी एक प्लांट पे। सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्पिटिशन कि जिसमें दोनों का लॉस है या फिर कोई एक ज्यादा लॉस में है दूसरा कम लॉस में है, ओके सो दिस इज द इंटरेक्शन कॉम्पिटिशन। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, द सेकेंड इंटरेक्शन इज पैरासाइटिज्म which is common and you can know about the parasitism कि what is parasitism। so the first one is कि अगर
मुझे राजकोट जाना है, ओके मुझे राजकोट जाना है, तो मुझे 3 से 4 दिन तक वहाँ पे स्टे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आई डू, सो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू द गेस्ट हाउस एंड पे फॉर सम डेज टू स्टे देयर, ओके सो मैं वहाँ पे चार्ज दूंगा या फिर पे करूँगा, मुझे रहने के लिए खाने के लिए भी पे करूँगा, तो मुझे पे करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा 4-5 दिन रहना। और अगर मैं उसका दूसरा ऑप्शन लूँ कि अगर मैं कोई ऐसा मेरा रिलेटिव जो वहाँ पे रहता हो सीधे ही उसके घर पे जाके रहूँ, तो क्या होगा, सीधा ही उसके घर पे जाके रहूँ तो क्या होगा, मुझे खाने का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, मुझे रहने का कोई चार्जेस नहीं देने हैं, आई एम डायरेक्टली, मैं कैसा कह सकते हैं, मैं उन पे पड़ चुका हूँ, मैं अब सीधा उन पे हूँ, तो वो मुझे पालेंगे 3-4 दिन तक, सो मुझे कोई खर्चा नहीं है। सेम थिंग करते हैं पैरासाइट, वो क्या करते हैं, वो किसी होस्ट पर पैरासाइट हो जाते हैं और जो जीने के लिए जो भी फूड, वाटर, हैबिटाट, व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड है, वो सभी चीज़ें वो लेते हैं फ्रॉम दैट अनदर एनिमल, और वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं फॉर सर्वाइविंग दैट अनदर एनिमल। वो दूसरे एनिमल पे कंप्लीटली सर्वाइव करते हैं फॉर लिविंग, सो दैट इज नॉन एज पैरासाइट। और वो जिस पे सर्वाइव करता है दैट इज नॉन एज होस्ट। तो एक होस्ट होता है और उसके ऊपर जो होता है वो होता है पैरासाइट। सो ऐसा कोई होता है कि वो तो रिलेटिव इसलिए बोलेगा नहीं, वरना कोई ऐसा बोल सकता है कि हाँ भाई आ जाओ, हम फ्री हैं, हमें खर्चा लेने का शौक है, आ जाओ, नहीं बोलेगा। तो होस्ट आर नॉट सपोज टू एक्सेप्ट द पैरासाइट, वो दे आर नॉट एक्सेप्ट द पैरासाइट। व्हाई? वो पैरासाइट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो होस्ट के अंदर उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी है जो होस्ट को पैरासाइट को इनहिबिट कर सके। सो उसके लिए नेचर ने पैरासाइट को क्या दिया है, बिकॉज उसका नेचर ही ऐसा है, पैरासाइट का नेचर ही ऐसा है कि उसको सर्वाइव करना पड़ता है दूसरों के ऊपर एज इन फूड, बिकॉज उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। सो पैरासाइट को भी भगवान ने क्या दिया है, adaptation. Naturally parasites have some adaptation, like they have a cuticle wall on their body, okay, so body wall is made up of cuticle, so it is protect from, for an example, अगर मेरे अंदर कोई पैरासाइट स्टमक के अंदर है तो the digestive juices are there, HCl is there, so उसको पैरासाइट को डैमेज हो सकता है। तो पैरासाइट को डैमेज ना हो होस्ट की बॉडी से, that's why they protect their self with the cuticle layer. Then they contain hook suckers, they bears the hook suckers for suck the food, suck the blood, okay, and attach with host, so they also have the hooks, okay, hook होता है so attach हो सके वो होस्ट के साथ, okay, so ये होता है पैरासाइट के एडेप्टेशंस। नाउ दूसरा क्या होता है कि कई सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जिसके एक स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। पैरासाइट का होस्ट है वो स्पेसिफिक होता है जनरली, ओके, और कभी कभी एक से ज़्यादा भी होस्ट होते हैं। सो दैट होस्ट आर डिवाइडेड इनटू मेन होस्ट और सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट, ओके। फॉर एन एग्जांपल लिवर फ्लूक, जो भी ट्रिमेटोड्स हैं, ट्रिमेटोड इज अ क्लास ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस, ओके, सो ट्रिमेटोडा है लिवर फ्लूक इज एग्जांपल ऑफ ट्रिमेटोडा। सो लिवर फ्लूक है वो ऐसा वर्म है कि वो पैरासाइटिक है ह्यूमन लिवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। सो क्या होता है कि दे आर सर्वाइविंग इन ह्यूमंस थ्रू द इंटरमीडिएट होस्ट, सो देर आर फ्यू इंटरमीडिएट होस्ट आर ऑल्सो देर। सो इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसके थ्रू वो पास करके यू मेन या चीफ होस्ट के अंदर आता है। फॉर एन एग्जाम्पल लिवर फ्लूक के लिए इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल है या फिश है, वो दोनों इंटरमीडिएट होस्ट है लिवर फ्लूक के लिए, कि जो स्नेल के थ्रू एनिमल्स में ह्यूमंस में या फिर कैटल्स में जाता है, फिश के थ्रू कैटल्स में या एनिमल्स के अंदर जाता है, और थ्रू अ वाटर इज अ मीडियम, सो लिवर फ्लूक इज कंटेन अ इंटरमीडिएट होस्ट। सेम एज प्लाज्मोडियम से हमको मलेरिया होता है मच्छर के काटने से।
The Anopheles female mosquito bite us or bite humans and they transmit the plasmodium through mosquito to humans. So mosquitoes, Anopheles mosquitoes are intermediate host of Plasmodium species. So Plasmodium species है, उसकी intermediate host कौन है? मॉस्किटो. ओके, और मॉस्किटो से क्वेश्चन है, मॉस्किटो फीमेल ही बाइट करती है, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता. ओके, और फीमेल मॉस्किटो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ही बाइट करती है, तो यू कांट से कि दे आर परमानेंट होस्ट. सो मॉस्किटोज आर नॉट परमानेंट, परमानेंट होस्ट नहीं, परमानेंट पैरासाइट. मॉस्किटोज आर नॉट परमानेंट पैरासाइट, दे आर टेम्पररी पैरासाइट, यू कैन से. Okay, now parasites are divided into two different parts, ectoparasite or external parasite or endoparasite, internal parasite. So ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite means कि जो बॉडी के होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं और बाहर से सर्वाइव करते हैं, they are known as external parasite. और ectoparasite like human louse जो सर के ऊपर होती है. So human louse is a ectoparasite. Like ticks, डॉग के अंदर अगर डॉग है वो ईचिंग करता है, तो डॉग के अंदर आपको पता है कि एक टिक होती है, इंसेक्ट है, टिक होती है. ओके, दे आर ectoparasite. लाइक प्लांट के अंदर भी ectoparasite का एग्जांपल है कि जिसके पास ग्रीन अमरवेल बोलते हैं उसको, द ग्रीन पार्ट है वो लेफ्ट हो जाता है या फिर क्लोरोफिल नहीं होता, कि लीफ नहीं होते, तो दे आर पैरासाइट ऑन plants, that is known as ectoparasites. Now so many examples of endoparasite or internal parasite. Endoparasite means ये जो plasmodium का example दिया है, that is endoparasite. Liver fluke is an endoparasite. They damage the liver, kidney, intestine, blood. So they infect the different organs and damage that different organs. So many worms, so many bacteria, like then so many plasmodium के अलावा amoeba, then so many protozoans are there, as in they work as an endoparasite. So they damage the different organs of animal. Okay, now एक और parasitism है, that is known as brood parasite, जो बर्ड्स के अंदर होता है. नाउ कई सारे बर्ड्स हैं एंड द फेमस एग्जांपल इज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, मींस कि जब थोड़ा मॉनसून से पहले जब ऑटम होता है. ओके, सो ड्यूरिंग द वार्मर समर सीजन द कोयल बर्ड ले देयर एग एंड दे पुट देयर एग इनटू द क्रो नेस्ट. सो वो जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, एग ले करके एग से जब जो बच्चे हैं, यंग वन है, वो बाहर आते हैं, दैट पीरियड इज नॉन एज गैस्ट्रेशन पीरियड. और दैट गैस्ट्रेशन पीरियड और ब्रीडिंग सीजन जो होती है, उसके बाद जो एग ले करता है वो दूसरों के नेस्ट में रखते हैं. लाइक कोयल बर्ड है वो क्रो के अंदर रखते हैं. तो दैट इज वन टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म, कि वो जो अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है या डेवलपिंग बर्ड है वो डेवलप होता है दूसरों, और कोई दूसरा बर्ड है वो उसको डेवलप करता है कि वो समझता है कि ये मेरा है. और ये एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है. सो दैट इज नॉन एज ब्रूड पैरासाइट. Okay, so today we discuss the two different interaction. The first one is competition and the second one is parasitism. Okay, now we will move to second or two different interaction into the next lecture. Okay, so we will meet in the next lecture. So यहाँ तक रखते हैं. Okay, bye.